ये मिस्टर नवजीत सिंह हैं, हमारे चंडीगढ़ बर्ड क्लब के बहुत सीनियर मेंबर। सर, आपसे दो सवाल हैं मेरे। एक, वाई इज़ द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 February? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ रामसर कन्वेंशन एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे? Ramsar is the location in Iran where the convention to protect wetlands was signed. So that is why it is called the Ramsar Convention. And why is the second? So why was the Ramsar Convention needed? So the issue out here is that the Ramsar Convention. On 2nd of February 1971, countries got together for a convention in Ramsar. It's a place in Iran on the Caspian Sea, and they signed a convention to protect wetlands of international importance. This was done basically because a lot of migratory species and don't use a particular country as such, but they move from country to country and use these wetlands. So that was one part of it, and the other part of it was because of effects of climate change and other things, to protect our environment. It was important that these wetlands were protected. So 90% of the countries in the United Nations are signatories to the Ramsar Convention, except for, I think, there are a couple of countries, including the US, who have not signed this convention. The signatories of this convention in 1997 decided to celebrate 2nd of February as World Wetland Day, so that a focus on conservation of wetlands is established in these countries, and people are made more aware of the importance of wetlands. So that is the significance of World Wetland Day, celebrated on the 2nd of February each year. So there is another misconception about what exactly is a wetland. And, one must understand that wetlands are not just sheets of water or lakes or, something like that, but wetlands also include rivers, badlands. Now, for example, something like Keshupur in Gurdaspur area is a wetland because it is a bogland. It is something where there is stagnant water that has been there for years and years. Similarly, there are wetlands which are peatlands, areas where there is, melting snow and ice in say Siberia and other places. So it is not just lakes, rivers, and things like that. It is also badlands, marshes, ponds, whatever, associated with such habitats where there are reed beds. Basically, any kind of land where there is water which covers that land for some period of time in a year is regarded as a wetland. सो हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ बर्ड क्लब के प्रेसिडेंट मैम रीमा ढिल्लो से। मैम, आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है। आप हमें दो अच्छे, कोई इंडिया के बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी वाले दो वेटलैंड्स का नाम बताएंगे? एक तो पंजाब में ही है, हरिके। तो हरिके का वेटलैंड बहुत ही अच्छा है और रामसर साइट भी है। और उसमें बहुत स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आती हैं। अब उधर रेजिडेंट बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा तरह की हैं, और जो माइग्रेटरी आती हैं वो भी तकरीबन जो भी माइग्रेट करता है इस तरफ को इन दिस रीजन, वो वहाँ पे ज़रूर आता है। और उसके साथ में ही पोंग डैम पड़ती है। पोंग डैम बहुत बड़ा वेटलैंड है, हरिके से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ पे पीछे कुछ सालों में काफ़ी रेयर बर्ड्स भी देखी गई हैं। स्वॉन्स आ चुकी हैं एक बारी,
और ऐसे वाइट फ्रंटेड गूस आ चुकी, जब सबसे पहले दिखी थी तो वहीं पे दिखी थी सबसे पहले, उसके बाद में और जगह भी आने लगी। बाकी कंट्री में हमारे मंगल जोड़ी है उड़ीसा में चिल्का लेक के साथ में, तो वो भी बहुत अच्छा वेटलैंड है और वो कम्युनिटी रिजर्व भी है। और वहाँ पे जो गाइड्स हैं वो जो साथ में एक गांव पड़ता है उसी के लड़के हैं सारे, और उनको ट्रेन कर रखा है इसके लिए। So these are we have some really very good wetlands in the country. So I guess there is one more community reserve in Punjab also, केशवपुर. केशवपुर भी कम्युनिटी रिजर्व है, वहाँ पे बहुत सारी डक्स आती हैं। अभी हम जनवरी में जब वाटरफाउल सेंसस होता है एशिया का, तो वहाँ पे भी करते हैं। एंड वहाँ पे उन्होंने पॉन्ड्स बना रखे हैं, तो जहाँ पे पानी रुका रहता है एंड बहुत बड़ी तादाद पे वहाँ पे माइग्रेटरी डक्स आती हैं। And it is all maintained by community. It is maintained by the community. The land is also given up for it by the community itself. तो पहले एग्रीकल्चर लैंड भी रही होगी, और क्योंकि it belongs to the villages, तो इसलिए उन्हीं के नीचे ये रहती है और वो इसको मेंटेन करते हैं। Okay, that's very good. आप हमारे को थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स के बारे में कुछ बता सकेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स हैं? हमारे बहुत सारे इधर, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है तो हमारी हैबिटेट्स वैसे ही बहुत डाइवर्स हैं। तो एज़ फार एज़ वेटलैंड्स गो तो हमारे पास जो माशी एरियाज़ होते हैं वो हैं, जो रिवर साइड्स होते हैं उनमें वेटलैंड बनते हैं, वो भी हैं। देन वी हैव वेटलैंड्स इन बंगाल जहाँ पे सुंदरबंस है, तो वहाँ पे ये टाइडल वेटलैंड्स हैं। तो ये सब वेटलैंड्स में जो फौना दिखता है वो भी बहुत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ऑल्दो दे आर ऑल वेटलैंड्स बट द हैबिटेट कैन बी डिफरेंट। कहीं सॉल्ट वाटर है, कहीं फ्रेश वाटर है। तो जैसे हम अगर जाते हैं गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे वेटलैंड है कि आधी वो फ्रेश वाटर है जामनगर में और आधी वो सॉल्ट वाटर है। तो उसमें उधर तो सॉल्ट पैन्स भी बहुत हैं, तो उसमें अलग तरह के बर्ड्स आते हैं और वेडर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। सो इस तरह हमारे बहुत ही डाइवर्स एरियाज़ हैं, और वेटलैंड्स में ही इतने डाइवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली उनके जो बर्ड स्पीशीज़ होंगी या बाकी जो इंसेक्ट स्पीशीज़ होंगी, एनिमल स्पीशीज़, सो ये अलग अलग भी हो सकती हैं। ओके, सॉल्ट वाटर से मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, माइट बी पॉसिबल कि ये चीज़ परसिस्ट करती है या नहीं करती, बट मेरे को जितना पता है उसके अंदर टाइगर्स के अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस देखे गए हैं सॉल्ट वाटर के अंदर। सो ऐसा कुछ क्या बर्ड्स के अंदर भी देखा गया है? कोई ऐसी स्टडी है उधर? एक्चुअली इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता अबाउट द स्टडी, बट जब हम जामनगर गए थे तो जो स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में दिखती थी और जो सॉल्ट वाटर की साइड में, उसमें एक बंद है जो जाम साहब ने बहुत साल पहले बनाया था, व्हेन इट वाज स्टिल अ रॉयल राजा जाम ने। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने बंद बनाया था कि जो फ्रेश वाटर है और सॉल्ट वो मिक्स ना हो, क्योंकि सिटी को चाहिए था ड्रिंकिंग वाटर, तो इस वजह से उन्होंने वो सेपरेट किया। और देखने को यही मिला कि स्पीशीज़ भी थोड़ी अलग अलग थी दोनों साइड में। तो आई एम नॉट श्योर कि जो फ्रेश वाटर किया उसने अडेप्ट किया सॉल्ट वाटर को, क्योंकि वो दिखती ही अलग थी। उनका फूड सोर्स अलग हो गया ना, जो सॉल्ट वाटर में होगा वो फ्रेश वाटर में नहीं होगा। ओके, सो इस वजह से। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। दैट्स गुड। फिर ये जंगली मुर्गा है, घर वाला नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ